નમો અરહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોયે સવ્વસાહૂણં. પ્રશ્ન નંબર 236 પર ચર્ચા થઈ. સ્વાધ્યાય કોને કહે છે અને સ્વાધ્યાય કેટલા પ્રકારના હોય છે? સ્વાધ્યાયની પરિભાષા એ બતાવેલી. સ્વ, અધિ અને અય એ 3 શબ્દોનું મિશ્રણ છે સ્વાધ્યાય. સ્વનો અર્થ થાય છે પોતે, અને પોતાનો અર્થ અહીંયા શરીર અને આત્માની જે મળેલી અવસ્થા છે એ અવસ્થાનું નામ સ્વ નથી. જેમ અત્યારે હું તમને નામ પૂછું કે તમારું નામ શું છે, અને તમે તમારું જે નામ બતાવો અને એમ કહો કે આ એટલે હું પોતે, આ સ્વ, તો એની અહીંયા ના પાડી છે. કારણ કે એ જે અવસ્થા છે એ 2 અલગ અલગ પદાર્થોની એક સાથે મળેલી અવસ્થા છે. એ આત્મા અને શરીર એ બંનેની એકરૂપ અવસ્થા છે, જે નામ આપણે બીજાને બતાવીએ છીએ. અને એનું નામ સ્વ નથી, કારણ કે એમાં 2 વસ્તુ મળેલી છે, એક સ્વ અને એક પર. પર એટલે બીજું, સ્વ એટલે પોતે, સેલ્ફ એન્ડ અધર. તો અહીંયા જે સ્વનો અર્થ છે સેલ્ફ, અધિનો અર્થ છે જાણવું, અને અયનો અર્થ છે કે પોતાના આત્માને જાણવાનું, જે એટલે આત્મજ્ઞાન, એ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી, એનું નામ સ્વાધ્યાય છે. અને એ સ્વાધ્યાયના 5 પ્રકાર છે: વાંચના, પૃચ્છના, આમનાય એટલે પર્યટના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મોપદેશ. વાંચનામાં કોઈ પણ આગમનો શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી અભ્યાસ કરવો, એનું નામ છે વાંચવું, એનું નામ છે વાંચના. હવે એ કહે કે એ આગમનો અભ્યાસ આપણે કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ. આપણે તો ગ્રહસ્થ છીએ, અને ઘણી વખત તમે એવું સાંભળ્યું છે કે આગમ તો મહારાજ સાહેબ ને સાધુને એ જ વાંચી શકે, ગ્રહસ્થોએ ન વાંચવા જોઈએ, કારણ કે એમાં જે બધી વાત બતાવી છે એ આપણને સમજાય એવી નથી. તો અહીંયા એ કહે છે કે એવું નથી. શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય કોઈ પણ કરી શકે, આગમનો સ્વાધ્યાય કોઈ પણ જીવ કરી શકે. એનું કારણ એ છે કે તીર્થંકર ભગવાનના સમોસરણમાં જે વાત તીર્થંકર ભગવાને 4 જ્ઞાનના ધની ગણધરદેવને બતાવી હતી, એ જ વાત પશુઓને પણ બતાવી હતી. ભગવાને એવો ભેદ નહોતો પાડ્યો, કારણ કે સમોસરણમાં તો જાનવર પણ, ગાય ભેંસ પણ ભગવાનની વાણી સાંભળવા જાય છે, અને 6થા 7મા ગુણસ્થાન વર્તી ગણધરદેવ પણ જાય છે. પણ તીર્થંકર ભગવાન એવો ભેદ નથી રાખતા કે આ જીવ માટે અલગ ઉપદેશ આપવું ને બીજા જીવ માટે અલગ ઉપદેશ. કોઈ પણ સંઘની પંચેન્દ્રિય જીવ, એટલે કે જેને 5 ઇન્દ્રિય અને મન હોય, એને સંઘની કહેવાય. તો કોઈ પણ સંઘની પંચેન્દ્રિય જીવને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થઈ શકે એવી શક્તિ હોય છે, આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થઈ શકે છે. દરેક મનુષ્ય, દરેક દેવ અને દરેક નારકી નિયમથી સંઘની પંચેન્દ્રિય હોય છે. અને તિર્યંચમાં સંઘની પંચેન્દ્રિય અને અસંઘની એવા ભેદો હોય છે. અને તિર્યંચમાં પણ સમ્યક દર્શન પ્રગટ થઈ શકે છે. સંઘની પંચેન્દ્રિય તિર્યંચ હોય તો તિર્યંચ કેવી રીતે કહેવાય? તિર્યંચ એટલે પશુ પક્ષી. જેને તિર્યંચ આયુ કર્મનો ઉદય ચાલતો હોય એને તિર્યંચ કહેવાય. આ કર્મની દ્રષ્ટિએ તિર્યંચ એટલે, તિર્યંચનો અર્થ થાય છે અહીંયા જે આડા જે છે ને, આડા ચાલવા વાળા, એ બધા તિર્યંચ, એના ઉપરથી શબ્દ પડ્યો છે. જેમ કે એ મનુષ્ય આડો અવતાર કહે ને, કે આપણે અત્યારે સીધો અવતાર મળ્યો છે. સીધું કામ કરીએ તો સીધો અવતાર મળે, આડા કામ કરીએ તો આડો અવતાર મળે. ઢોરનો અવતાર મળે, આડો અવતાર મળે, તિર્યંચ કહેવાય. અને એ તિર્યંચ ગતિમાં પણ સમ્યક દર્શન પ્રગટ થઈ શકે છે, કારણ કે એમાં પણ એટલી સમજ છે, જેની માટે મેં તમને એકવાર વાત કરી હતો કે કૂતરાને પણ એ સમજ છે કે એને રોટલી નાખીએ છીએ તો ક્યાંથી ચોરીને રોટલી લઈ આવ્યો હોય તો ખૂણામાં જઈને છુપી રીતે ખાય છે, અને કોઈ માલિક એને રોટલીનો ટુકડો નાખે તો છુપી રીતે નથી ખાતો, એની માલિકની સામે જ ખાઈ લે. કૂતરાને બોલતા નથી આવડતું ચોરી કોને કહેવાય,
પણ એને ખબર પડે છે કે પહેલા દિવસે જે આમને છૂટી રીતે લઈ આવ્યો તો એ ચોરી કરી હતી, એટલા માટે ભયથી એકલો છૂટી રીતે ખાશે. અને બીજા દિવસે ખબર છે કે આ ચોરીનો માલ નથી, આ ઈમાનદારીથી મળેલી વસ્તુ છે, તો એને ભાગવાની જરૂર નથી લાગતી. કૂતરામાં પણ એ સમજ છે, અને એ સમજના બળ પર એ પણ આત્મજ્ઞાન પ્રગટ કરી શકે છે. ભગવાનના સમોસરણમાં તો દેડકાઓ પણ ભગવાનની વાણી સાંભળવા જ હતા. ને એ તો શાસ્ત્રોમાં આવે છે ને કે શ્રેણિક મહારાજાના હાથીના પગ નીચે દેડકો એક ભગવાનના સમોસણમાં ભગવાનને પૂજા કરવા જતો હતો પુષ્પ લઈને, અને પગમાં હાથીના પગ નીચે કચરાઈ ગયો, મરીને એ દેવલોકમાં દેવ થયો. તો એના જે ભાવ હતા એ ભાવના બળ ઉપર એ દેવલોકમાં ગયો. એનામાં પણ એટલી સમજ છે કે આ ભગવાન છે અને હું અજ્ઞાની છું, રાગી છું, ભગવાન વિતરાગી છે, એટલી સમજ એમાં પણ છે. મહાવીર ભગવાન જૈન ધર્મમાં જે 24 તીર્થંકર છે એમાં જે 23માં તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ ભગવાન અને 24માં મહાવીર ભગવાન. પાર્શ્વનાથ ભગવાનને સૌથી પહેલા આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થયું એ હાથીની પર્યાયમાં થયું, અને મહાવીર ભગવાનને સૌથી પહેલા સમ્યક દર્શન થયું એ સિંહની પર્યાયમાં થયું. આવી ખાસ વાત સમજવાની એ છે કે બે પ્રાણીઓ હાથી ઔક્ષમિક ત્રણ પ્રકારના સમ્યક દર્શન હોય. ઔક્ષમિક સમ્યક દર્શન, ક્ષાયોક્ષમિક સમ્યક દર્શન અને ક્ષાયિક સમ્યક દર્શન. એના પ્રકાર એવી રીતે છે કે એક પાણીમાં 100 રજકણો છે અને 100 રજકણ નીચે તળિયે દબાઈ જાય અને 100 છે ને એ પાણીમાં નીચે તળિયે દબાઈ ગયા અને પાણી પ્યોર થયું. એક તો આ પ્યોર થવાની વિધિ. બીજું એ છે કે એ 100 ડસ્ટમાંથી 50 ડસ્ટ તો નીચે દબાઈ ગયા છે એટમ્સના, અને 50 એટમ્સના બહાર નીકળી ગયા અને પાણી પ્યોર થયું. એ સેકન્ડ ટાઈપનું છે. અને થર્ડ એ છે કે 100 એટમ પાણીમાંથી બહાર જ નીકળી જવા અને પાણી પ્યોર થવું. ત્રણે ત્રણ રીતે પાણી પ્યોર થાય છે. તો જે એવી રીતે કર્મનું છે કે કોઈ કર્મ એવા હોય કે જે આત્મામાં દબાઈ ગયા હોય, એટલે 100% નીચે દબાઈ ગયા 100% મોહની દર્શન મોહનીય કર્મ દબાઈ જવાનું નામ ઔક્ષમિક સમ્યક દર્શન છે. એ ટાઈમે એને મોહ ન હોય, કોઈ પણ પદાર્થને મારો ન માને, એને એ વાતની અંદરમાં પ્રતીતિ થઈ હોય, શ્રદ્ધા થઈ હોય કે જગતમાં આત્મા સિવાયનો કોઈ પણ પદાર્થ મારો નથી. એ માનવું, બોલવાનું નહીં પણ માનવાનું, એનું નામ છે સમ્યક દર્શન. એટલે આ ઔક્ષમિક જે છે અત્યારે જે આપણે ભેદ કરીએ છીએ ને કે ઊંઘમાં પણ આપણને પણ એ વિચારોમાં માન્યતામાં એ વાત પડેલી છે કે આ ઘર મારું છે, આ પાડોશીનું છે, નીચે રહેલી આ ગાડી મારી છે, આ બીજાની છે, આ પુત્ર પત્ની પરિવાર ઘર સગાવાલા બધા મારા છે, આ બધા પારકા છે, એવો ભાવ આપણને ઊંઘમાં પણ બિલીફ આપણું અંદરમાં પડેલું છે. જ્યારે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન થાય છે એ સમયથી લઈને જગતના કોઈ પણ પદાર્થ છે ત્યારે પછી બાકી આ આત્મા સિવાય બધા પદાર્થ અધર્સની કેટેગરીમાં જાય છે. અત્યારે આપણે સેલ્ફ અને અધર્સને આપણે ડિવાઈડ કરીને રાખ્યા છે, પણ સેલ્ફમાં કોને કોને રાખીએ છીએ? એમાં પુત્ર પત્ની ઘર ગાડી પૈસા એ બધું આપણા સેલ્ફની પોતાની બાઉન્ડ્રીમાં માનીએ છીએ, અને એ સિવાય પાડોશીનું ને બીજાનું એ બધું આપણે પરમાં માનીએ છીએ. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન થાય ત્યારે પોતાની પત્ની પણ પરમાં જતી રહે છે, આ શરીર જે છે એ શરીર પણ પરમાં જતું રહે છે. અને અહીંયા સુધી કે આપણા આત્મામાં જે ભાવો થાય છે, એંગર, ઈગો, ડિસીટ, ગ્રીડ, ક્રોધમાન, માયાલોભના, એ ભાવો પણ પરની કેટેગરીમાં જતા રહે છે. પોતાની કેટેગરીમાં એક જ વસ્તુ રહે છે, આત્મા. એવું સ્થિતિ આવી જાય તો શું કહેવાય ને? સમ્યક દર્શન કહેવાય. સમ્યક દર્શન શું હોય છે? સમ્યક દર્શનનો અર્થ જ એ છે કે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, જેને આપણે એમ કહેવાય કે કોઈ પણ જીવ આજ સુધી મોક્ષે ગયા છે, શરીર જેને છૂટ્યું છે, કારણ કે મોક્ષમાં મહાવીર ભગવાનને હવે શરીર નથી, અશરીરી છે. જે આપણે નમોકાર મંત્રમાં કહીએ ને, નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ. મહાવીર ભગવાન became sadhu at age of 30 and he became arihant at age of 42 and became siddha at age of 72. તો એ ત્રણ અવસ્થા છે, 30 years, 42 years અને 72 years. તો 42 to 72 એ જે 30 વર્ષની અવસ્થા છે, અરિહંત અવસ્થા હતી. ત્યારે તો શરીર હતું, જ્યારે આપણને અહીંયા ઉપદેશ આપતા હતા સમોસરણમાં, એ અરિહંત ભગવાનની અવસ્થા હતી. આફ્ટર અટેનિંગ કેવળ જ્ઞાન એન્ડ બિફોર લિવિંગ બોડી, એને કહેવાય અરિહંત અવસ્થા.
એ 30 વર્ષ માટે મહાવીર ભગવાનની હતી. બધા તીર્થંકરોને અલગ અલગ સમય હોય, પણ જયારે એ શરીર છૂટ્યું ત્યારથી પછી એ સિદ્ધ થયા. પણ સિદ્ધ થયા એટલે શરીર છોડ્યા પહેલા કોઈ પણ જીવને શરીર મારું નથી એવું રિયલાઇઝ થવું જોઈએ. અને આ વાતની પ્રતીતિ થવાનો અર્થ એ કે એ વખતે તમને અંદરમાં એ વાતનું રિયલાઇઝ થાય ત્યારે પછી શરીરની કોઈ પણ સ્થિતિ હોય, શરીરમાં તાવ આવે તો તમને દુઃખ ન થાય, શરીરમાં તાવ મટે તો તમને આનંદ ન થાય, શરીરમાં દાગ લાગ્યો હોય તો તમને આનંદ ન થાય, શરીરમાં લાગેલો દાગ મટી જાય તો તમને આનંદ ન થાય, દાગ લાગવાથી દુઃખ ન થાય. એટલે શરીરના કારણે તમને કોઈ દુઃખ ન થાય. તમે એ વાતને માની લીધી છે કે આ શરીર મારો પાડોશી છે, આ હું નથી. અને મોટાભાગનું દુઃખ આપણને શરીરના અંદર જે કઈ બીમારી કે શરીરમાં જે કઈ પણ પરિવર્તન થાય છે એનું દુઃખ નથી. દુઃખનું મૂળ કારણ એ છે કે આ શરીરને માનેલું છે કે આ મારું છે. આ સ્થિતિ એના જેવી જ છે કે બસમાં આપણે જતા હોઈએ, 15 મિનિટનું ટ્રાવેલિંગ કરવાનું છે, બસમાં બેઠા અને બસમાં થોડો રંગ ઉખડી ગયેલો હતો તો આપણે એક કામ કર્યું કે તરત જ નીચે ઉતર્યા અને દુકાન હતી ઓઇલ પેન્ટની તો ત્યાંથી પેન્ટ લઈ લીધો અને લઈને ત્યાં કલર કરવા લાગ્યા. તો આવું જો કરીએ તો કોઈ આપણને એમ કે આ મૂર્ખ છે કે 15 મિનિટ ટ્રાવેલિંગ કરવું છે ને એના અંદર જેવો કલર હોય જેવું હોય રહેવા દે ને ભાઈ, એને છોડવાનું છે 15 મિનિટ પછી. તો આ શરીર પણ એ સ્થિતિમાં છે કે 15 મિનિટ નહીં તો 15 વર્ષે, 30 વર્ષે, 45 વર્ષે એને છોડવાનું છે. આત્મા એની સાથે ટ્રાવેલ કરી રહ્યો છે, પણ આપણને એનું બિલીફ નથી. બસમાં તો બિલીફ છે કે આ છોડવાનું છે એટલે આપણે એને પેઇન્ટ નથી કરતા, પણ અહીંયા એવું બિલીફ જો થઈ જાય તો અહીંયા પણ પછી આ શરીરને પાવડર, મેકઅપ, આ તે બધું સંગાર બધું છૂટી જાય. જો એવી પ્રતીતિ થઈ જાય તો કે આ મારું નથી અને આની સાથે ટેમ્પરરી મારું આ એસોસિએશન છે. ભાડામાં ઘરમાં ગેસ્ટ હાઉસમાં રહીએ છીએ, ગેસ્ટ હાઉસમાં રહીએ છીએ એવું લાગવું જોઈએ. ડિફિકલ્ટ છે, પણ જયારે તમે આ માર્ગમાં તમે જયારે આવશો, આ લોકોને તો છેલ્લા 2 વર્ષથી અનુભવ છે, તમે પણ જયારે આવશો તમને પોતાને રિયલાઇઝ થશે. ધીરે ધીરે આ સડનલી નથી થતું. એનું કારણ છે કારણ કે આ જે અંદરમાં આપણે મિથ્યાત્વ, રોંગ બિલીફની જે ગાંઠ પડેલી છે ને એ ભવભવની પડેલી છે. કાનજી સ્વામી એક એક્ઝામ્પલ આપતા કે ઘાટીની ઘાણીમાં પેલો તલના પીસે ને અને એના કારણે થઈને તેલના કારણે એના કપડા ઉપર તેલ લાગ્યું હોય, પછી ત્યાં દસ્ત હોય ને એ પણ તે શરીર પર ચોટી હોય ને કપડા એટલા મેલા થયા હોય, એ ઘાટીના કપડા આપે. કપડાનું એક્ઝામ્પલ આપતા. હવે એક કપડાનો મેલ દૂર કરવો હોય તો કે એક તો આ બ્રશ મારે તો જવાનું નથી, એવો બિલકુલ જામી ગયો છે, એને વારંવાર 1 વાર 2 વાર 3 વાર એમ કરે એ મેલ એનો દૂર થવાનો છે. તો કે આપણો પણ આ મિથ્યાત્વનો જે રોંગ બિલીફનો મેલ છે આત્મામાં લાગેલો એ પણ ભવનો છે. કારણ કે દરેક ભવમાં આપણે જે શરીરમાં ગયા એ બધા શરીરમાં નેચરલ અટેચમેન્ટ આપણું થઈ ગયું છે. આત્મા એનો એ જ છે, શરીર બદલાઈ જાય છે અને જે શરીરમાં આત્મા દાખલ થાય છે ત્યાં એને એમ જ થઈ જાય છે કે આ જ હું છું. મેં એક બુકમાં આ વાત લખી છે કે એક રાજા જેને કોઈ અવધિ જ્ઞાની મુનિએ કીધું કે તમારે 8 દિવસનું જીવન બાકી છે, 8 દિવસ પછી મરી જવાનું છે અને મરીને પછી તમે તમારા મહેલના અંદર ટોયલેટમાં લાલ કીડા તરીકે જન્મ લેશો. તો ચિંતામાં પડે છે, પોતાના 4 છોકરાને બોલાવે છે કે મહારાજ સાહેબે કીધું છે કે તમે મરી જવાના છો અને 8 દિવસ પછી ઘરમાં લાલ કીડા તરીકે જન્મશો, તો તમે તમારા પિતાને લાલ કીડાના રૂપમાં જોવા માંગો છો? છોકરા વિચારે ના પડી, ના અમારાથી આવું કેવી રીતે દેખાય. તો કે એક કામ કરજો, જેવા મારું અહીંથી મરણ થાય અને ટોયલેટમાં લાલ કીડા તરીકે જન્મ ત્યાં મને મારી નાખજો, મુક્ત કરી દેજો. કે સારું. અહીંયા પપ્પા મરવાની તૈયારીમાં હતા, પપ્પાની બાજુમાં કોઈ નતા ઉભા, 4માંથી એક બધા ટોયલેટમાં હતા કે જેવા ત્યાં આવે અને જન્મ લે આપણે મારી નાખીએ. અહીંથી મરણ થયું રાજાનું, ત્યાં લાલ કીડાનો જન્મ થયો અને જેવી લાકડી મારવા ગયો પેલો છોકરો તો કીડો ઉછળ્યો અને બીજી બાજુ જતો રહ્યો, બીજા છોકરાએ બીજી બાજુ લાકડી મારી, ત્યાંથી ઉછળીને અલગ જતી. તો એવી રીતે 4 છોકરા એને લાકડીથી મારવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે પણ એ પકડમાં નથી આવતો. એ કીડો એમ કહે છે કે મારે મરવું નથી, મન ન મારો, કારણ કે હું કીડો છું. જે આત્મા રાજાના શરીરમાં હતો ત્યારે એને રાજાના બોડીમાં એટલું અટેચમેન્ટ હતું કે આ જ હું છું, આ બોડીને મારે છોડવું નથી. એ જ પૂરું અટેચમેન્ટ એને કીડાના શરીરમાં ગયા પછી એ બોડીમાં થઈ જાય છે કે આ જ હું છું, મારે મરવું નથી. આ નેચરલ અટેચમેન્ટ છે અને એ ભવનું જે શરીરમાં આત્મા દાખલ થયો છે ત્યાં થઈ ગયું છે. અને એ જ મૂળ કારણ છે આપણા બર્થ અને ડેથના સાયકલનું.
એ સંસાર પરિભ્રમણનું મૂળ કારણ આ છે. નિગોદિયાને પણ એવું હોય છે. બટાટામાં જે જીવ છે એક શ્વાસમાં 18 વખત જન્મ મરણ કરે છે. છટાણમાં આવે છે ને, એક શ્વાસ में 8 10 12 જન્મ્યો મર્યો ભર્યો દુઃખ બાર. એક શ્વાસમાં 18 વખત જન્મ મરણ કરે છે. મોઢામાં મૂક્યા અને એક શ્વાસ લઈએ એટલા ટાઈમમાં તો એના 18 વખત જન્મ થાય ને 18 વખત મરે. બટાટાના રહેલા જીવ. અને એ પણ એક જીવ નહીં, અનંત જીવ. કંદમૂળ બધા જ એના અંદર અનંત જીવ. એક રૂમ તો એવો છે કે પોતાનો પર્સનલ પ્રાઇવેટ રૂમ છે, અને એક એવો છે કે જે કોમન છે કે જેના અંદર 10 લોકો સાથે રહે છે. હવે 10 લોકોની સાથે આપણે એક દિવસ પણ રહેવું હોય તો આપણે વિચારવા પડે કે આ બધા અલગ અલગ ક્યાંથી આવેલાની સાથે એક દિવસ કેવી રીતે કાઢવો આ રૂમમાં. તો જે શરીરના અંદર એક જ બોડી છે અને આત્મા એક નથી, અનંત આત્મા છે, એક જ બોડીને શેર કરે છે, એનું નામ છે કંદમૂળના જીવ, નિગોદના જીવ. એક શરીર એક અને આત્મા અનંત. બધી આત્માઓ એક જ આદમી અલગ અલગ આત્માઓ છે દુનિયામાં. એટલે આપણે જેવી પણ આત્માઓ છે. તમે મારા જેવા, હું તમારા જેવા, બધા એક જ સરખા એક જ ક્વોલિટીના આત્મા છે. ખાલી એની અવસ્થાઓ અલગ અલગ છે. અવસ્થાઓ અલગ અલગ છે. મારો ક્રોધ વધારે છે, તમારો ઓછો છે, કોઈનો એનાથી વધારે છે, કોઈનો એનાથી ઓછો છે, એવી રીતે હોઈ શકે. સમજો હું મરી ગયો, હું પણ કંદમૂળમાં જન્મ લઈ. निगुद में आता है. एक इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय होती है, एक इंद्रिय होती है ना. वो निगुद में एक इंद्रिय तो होती, तभी तो कोई भी संसारी जीव बिना इंद्रिय का नहीं होता. कम से कम एक इंद्रिय, अधिक से अधिक 5 इंद्रिय होती ही है. इंद्रिय उन्हें नहीं होती जिनको शरीर नहीं होता, और वो सिद्ध भगवान है. નિગોદિયા એકેન્દ્રિય હોય છે. એના માટે પણ મેં તમને કીધું ને કે આપણે નિગોદિયા एकेंद्रिय જ હોય છે. एकेंद्रिय ही होते हैं. एकेंद्रिय में भी 5 प्रकार है: पृथ्वी काई, जल काई, अग्नि काई, वायु काई, वनस्पति काई. वनस्पति काई 2 प्रकार के हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति. साधारण वनस्पति का दूसरा नाम निगोद है. तो 5 प्रकार जो बताए एक इंद्रिय के, उसमें से जो आधा प्रकार है ना साधारण वनस्पति, बाकी 4.5 अलग, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति, वो निगोद नहीं है. साधारण वनस्पति निगोद है. और इसके लिए ये जो गाजर, मूली, आलू वगैरह खाते हैं तो उसको खाने का मना किया है. और ये तुअर, वटाना जो है उसको उसमें एक में एक जीव मरता है और उसमें पूरा मरता है. दोनों में कितना अंतर है कि वो भिंडी की सब्जी है तो उसमें से पूरा जो उसका पौधा है, उसका छोड़ है, उसको उसमें से अपन एक भिंडी निकालते हैं, मतलब 10 भिंडी निकाल ली, वो उसको जड़ मूल से उसका सर्वनाश नहीं कर दिया, उसका उस पौधे का अस्तित्व तो रहने दिया ना. दोनों में कितना अंतर है कि एक अपने बॉडी के किसी एक पार्ट को लिया जाए और एक पूरा उसका बॉडी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. तो जब अपन मूला निकालते तो उसका पूरा पौधा ही निकाल देते, उसको जड़ मूल से डिस्ट्रॉय कर देते. आलू को ऐसे ही निकाल देते, प्याज को ऐसे ही निकाल देते. बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसा कि मूंगफली है वो भी जमीन में उगती है, आलू भी जमीन में, मूंगफली क्यों खाते हैं, आलू क्यों नहीं खाते हैं? ऐसा साधारण का मतलब शरीर एक होता है और सभी आत्माओं का शरीर साधारण कॉमन बॉडी, और प्रत्येक माने प्रत्येक इंडिविजुअल बॉडी. तो बाकी जल का है और निगोद के जीव, जो जल में है वो जल का है, जो वायु में वायु का है. जितने भी जीव आपको यहाँ पर अभी दिख रहे हैं, ये आत्मा उन सभी प्रकार की अवस्था धारण कर चुका है. ऐसा इसी कोई अवस्था नहीं है कि जहाँ आत्मा गया नहीं है. और वहां पर यही प्रार्थना की थी कि एक बार मनुष्य का भाव मिल जाए, मैं धर्म करूंगा, और ये मिल गया. अभी तक तो गवा दिया, आगे मालूम नहीं, भूल गए आगे भूल गए. यहाँ पे साधारण वनस्पति અને नित्य निगोद और निगोद. वो साधारण वनस्पति का दूसरा नाम है निगोद, और निगोद के 2 प्रकार थे, इतर और नित्य निगोद और इतर निगोद. इतर निगोद, नित्य निगोद में क्या है? अनादिकाल से जो निगोद में ही निगोद में है,
तो बाहर निकला ही बाइफिकेशन नहीं है, नहीं, जो 608 जी में नहीं है, जो 608 में नहीं आया है। सर आप जो बताते नहीं होंगे वो अनादिकाल रहेंगे ना, क्योंकि पांचों से इत्यादि में कोई मोक्ष जा ही नहीं रहा है, तो निगोद में से कोई बाहर भी नहीं। यहाँ से मोक्ष नहीं जा रहा है, मगर तो विदेश से तो जा रहा है ना, जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही जाए। और ये तो नियम है कि हमेशा 6 महीने और 8 समय, समय का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टाइम। तो सेकंड, 1 सेकंड में तो संख्या समय होते हैं। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाते हैं, और नियम से 6 महीने और 8 समय में 608 जीव निगोद में से बाहर निकलते हैं, नित्य नित्य निकल के बाहर निकल। ये फर्क पड़ जाना। 608 जी एवरी 6 मंथ एंड 8 समय में जाते ही जाते ही जाते हैं। वो लेकिन महावीर क्षेत्र से जाते हैं अभी, नियम है, ये नियम है। और महाविद्य क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है यहाँ पर मध्य लोक में। वहां पर ये नहीं, भरत क्षेत्र की जैसा ही है, राइट, अभी नहीं जाएंगे, राइट, महाविद्य क्षेत्र से जाते हैं। वहां पर सिद्ध क्षेत्र में ये नहीं देखा जाता कि कहां से डिपार्चर हुआ है, अराइवल 608 का होता है बस। और निगोद में से 608 का डिपार्चर होता है, अराइवल कहाँ हुआ वो नहीं देखा जाता कि वो एकेंद्री में गए, 2 इंद्री में गए, पंचेंद्री में गए, कहाँ गए। निगोद में से निकलते हैं। નહીં सम्यक જે છે 100% દબાયેલું હોય, 100% દબાયેલું ઓપ્શમિક સમ્યક, અક્ષમિક સોરી 100% દબાયેલું હોય, એમાં માન્યતા શું હોય? એટલે બુદ્ધિપૂર્વક જ હોય? सेम बिलीफ नहीं, लेकिन बुद्धिपूर्वक હોય કે बुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक में तो विचार होते हैं, यहाँ विचार नहीं रहे। क्या तो जिनको औपशमिक सम्यक दर्शन भी हुआ है उन्हें प्रतीति के साथ में ये है कि ये शरीर मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, पुत्र पत्नी परिवार मेरे नहीं है, तो फिर वो जाता क्यों होगा? बस वही तो जो कचरा नीचे दबा हुआ है वो ऊपर आने ही वाला है, वो हमेशा के लिए नहीं नीचे दबा है। जो दबा हुआ कचरा नीचे है और पानी जो प्योर हुआ है वो पानी हमेशा के लिए प्योर नहीं हुआ है। जो कचरा बाहर निकल गया है वो पानी कभी अभी इम्प्योर नहीं होगा। नहीं, तो थोड़ा सा धक्का लगा तो हिल गया नहीं, लेकिन वो दबा हुआ नीचे है तो इसका मतलब वो बुद्धिपूर्वक ही क्लीन हुआ है, अभी तक प्रतीति से क्लीन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बुद्धिपूर्वक जो होता है ना उसमें 100% दबता भी नहीं है, उसमें तो ऊपर भी रह जाता है। ये अभी ऊपर नहीं है ना, ये कौन सी अवस्था है? कौन सी? ये औपशमिक सम्यक दर्शन की। इसमें प्रैक्टिकली प्रक्रिया क्या होती है, एक्शन क्या होती है? जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि की होती है ऐसी ही प्रतीति वहाँ पर औपशमिक सम्यक दृष्टि की होती है। मेंटली पोजिशन? हाँ, नहीं, वो मेंटली नहीं है, या मेंटली ग्रोथ में बात है। यहाँ तक कि केवली और तिर्यंच की प्रतीति बिलीफ एक समान होती है, सम्यक दृष्टि तिर्यंच की। उतने टाइम के लिए तो वैसी ही प्रतीति होती है, और उस टाइम अभी अब आप वो जाता है तो क्या होता है कि वो उदय अनुसार? हाँ, उदय अनुसार जाता है कि उसका कोई पांचों समवाय मिलते हैं। उदय निमित्त है, पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से सम्यक दर्शन चला गया, तो पुरुषार्थ भी कमजोर है। और ये स्वभाव है कि सम्यक से मिथ्यात्व, मिथ्यात्व से सम्यक, तो सम्यक से मिथ्यात्व रूप परिणमन हो सके, ऐसा आत्मा का स्वभाव भी है। ये स्वभाव हो गया। और पुरुषार्थ की कमजोरी वो पुरुषार्थ हो गया, कर्म का उदय है वो निमित्त हो गया। और वो उस टाइम पे ही क्यों छूटा, वो कालब्धि हो गई, और ये तो होना था तो हुआ, भवितव्यता होगी। शायद में नहीं, 100%। औपशमिक, क्षयोपशम, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक, जिस समय वो सम्यक दर्शन है उस समय प्रतीति तो ऐसी ही है, तीनों में सेम है। प्रतीति में, प्रतीति का मतलब होता है बिलीफ, मानना। उस समय ये मानते हैं बस, फिर उनके अंदर की प्रतीति ऐसी रहेगी कि ये किसी और को कहा जा रहा है। जैसे मैं इनको कहूं कि आप आज अच्छे नहीं लग रहे, तो आपको कुछ दुख नहीं हुआ,
क्योंकि आपको मालूम है कि आज मेरे को नहीं कहा और मैं कहूँ कि आज आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसा अंदर में बिलीफ है कि ये मेरे को नहीं कह रहे, ये शरीर को कह रहे हैं, मैं आत्मा हूँ। और ये पूरा दुख उसका ही है। शाही मतलब इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। शाही शिवक्षम एंड उपशम 100% दबा हुआ, 50% दबा हुआ एंड 100% क्लियर। 50% दबा हुआ भी मिश्रित हो जाता है, वो लंबे काल के लिए रहता है। औक्षमिक सम्यक दर्शन तो कुछ समय के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, अंतर्मुहूर्त के लिए होता है और वो लंबे समय तक रहता है। वो 66 सागरोपम साल तक रहता है। अनुत्तर विमान को होता है। और क्षायिक सम्यक दर्शन परमानेंट है। वही तो आपको बताया कि 5 इंद्रिय और मन जिनको भी है सबको ये हो सकता है। जिनको ये भेद ज्ञान, ये आपको बताया ना कि पार्श्वनाथ भगवान को हाथी की पर्याय में, महावीर भगवान को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, आत्मज्ञान हुआ। उसका उपार्जन पहले किया था। वही तो कि दोनों प्राणी, शाकाहारी प्राणी में बलवान प्राणी हाथी और मांसाहारी प्राणी में बलवान प्राणी शेर, और दोनों बलवान प्राणियों ने अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को मारने के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी आत्मा में जो अनादिकाल का मिथ्यात्व रूपी शत्रु है उसको मारने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। पूर्व भव में वो संस्कार दृढ़ हुए थे जिसकी वजह से वो पशु की पर्याय में भी हो गया। वो नक्की नहीं कि आपको मनुष्य भव में सम्यक्त्व, इसके लिए क्योंकि आपको आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि अभी आप इतने साल तक पढ़ाई करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे इस शरीर से अपनापन छोड़ने की, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मनुष्य भव का जो एंजॉयमेंट जो था वो भी छूटा और सम्यक दर्शन भी नहीं मिला, तो दोनों में से चल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं कि इस भव में यदि नहीं होता है तो अगले भव में कहीं ना कहीं संस्कार वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो संस्कार तो जाते हैं। तो सरलता जो है आपके आत्मा में, जो सरल परिणाम है, कोमल परिणाम है, क्षमा वाला स्वभाव है, तो इस भव में भले ही नहीं हो मगर इस प्रकार के परिणामों के कारण अगले भव में संस्कार साथ में जाएंगे। जो आप बोल रहे हो महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान को, वो उसका मतलब जो समझा नहीं। उनको पशु जब थे भूतकाल में, पिछले भव में, तब उनको आत्मज्ञान हुआ था। अच्छा हुआ, अच्छा वैसा बोला, ऐसा हुआ था। सबसे पहले आत्मज्ञान की प्राप्ति उस पशु पर्याय में हुई थी, हाथी के और शेर के पर्याय में। पर्याय का मतलब अवस्था। इसलिए कुछ भी नहीं, उनको क्या बोलते हैं, मतलब तीनों में से एक भी नहीं। सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो मिथ्या दर्शन है। वो सम्यक दर्शन के 3 प्रकार है, मिथ्या दर्शन के प्रकार नहीं है। वो एक ही उसमें है, एक मिथ्या दर्शन ऐसा होता है जो अनादि काल का है, जिसको सिखाया नहीं गया, और एक मिथ्या दर्शन होता है जो इस भव में माता पिता ने, किसी दूसरे ने, गुरु ने आपको सिखाया है, तो वो गृहित होता है। और पहले जो अनादि काल का है वो अगृहित होता है। जैसे वो अंधश्रद्धा की जो सब है ना कि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो वो गृहित मिथ्या दर्शन, वो आपने इस भव में आके सीखा है किसी के सिखाने पर। और शरीर को अपना मानो, वो आपको किसी ने सिखाया नहीं है, वो तो आप नेचुरल जन्म हुआ तब से ही मानते थे, वो अगृहित है। संस्कार अनादिकाल के संस्कार तो वो भी है ना कि इस भव में आपने मानो कि एक शास्त्र नहीं, ये तो अभी 1000 प्रश्न है, आपने लाखों प्रश्न पढ़ लिए, लाखों शास्त्र पढ़ लिए, गारंटी क्या कि अगले भव में आपको ये याद आएगा? उसका प्रूफ है नहीं आएगा, क्योंकि पिछले भव का आपको इस भव में क्या याद है? कुछ भी याद नहीं है। मैं आपको बोलूं पिछले भव में आपने कितने प्रश्न पढ़े थे, कुछ न कुछ किया तो होगा, याद कुछ नहीं है।
पर जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। हाँ, अब जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। जाति स्मरण ज्ञान में भी वो भव का ज्ञान होता है। आपने कौन सा प्रश्न पढ़ा था वो ज्ञान नहीं होगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये पढ़ा तो आपको ये डायरेक्ट बेनिफिट तो कुछ दिखता नहीं है, मगर संस्कार है ना वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। वो कैसे कि एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग में से एक को धर्म की रुचि है और बाकी 9 को नहीं है, बाकी 9 उसके अगेंस्ट में है। ये बड़ा धर्मात्मा हमारे घर में है, तो उसको धर्म करने का विचार क्यों आता है और बाकी सबको क्यों नहीं आता है? बाकी सबके संस्कार नहीं है, इसके संस्कार है। उसने पढ़ा था वो याद नहीं आया, याद नहीं रहा उसको, मगर संस्कार में दृढ़ हो गया है तो अभी भी काम में आ रहा है और यही संस्कार उसको आगे लेके जाएंगे। मैंने को उसमें आपको बताया हो तो कि एक ही परिवार में एक ही माँ के 2 जुड़वा बच्चे हैं, दोनों के एक से संस्कार नहीं है, अलग अलग संस्कार है। मम्मी है, एक बेटे को 2 चॉकलेट देती है, छोटे को भी 2 दी, बड़े को भी 2 चॉकलेट दी। छोटा वाला 2 अपनी खा गया और बड़े वाले के सामने ऐसे ही देखता है आंखें फाड़ फाड़ के, तो बड़े वाले को ऐसा लगा उसने खाई नहीं थी अपनी चॉकलेट, उसको लगा चलो ऐसे देख रहा है दे दो एक चॉकलेट मेरी है, तो उसने दे दी। उसने एक ही खाई, छोटे ने 3 खाई। मम्मी ने ये सिखाया था दोनों को कि दोनों को उदार बनने के लिए सिखाया था, मगर ये छोटा लालचू बना, तो लालची कहाँ से बना? माँ ने थोड़ी सिखाया था, बाप ने थोड़ी सिखाया था। एक ही घर था, एक ही माँ बाप, एक ही परिवार, एक ही एनवायरमेंट, तो पूर्व भोग के लालच के संस्कार लेके आया है तो अभी ऐसे ही मांग रहा है। और बड़े को भी पूर्व के संस्कार है, दे रहा है। भविष्य में भगवान ईश्वर के थे तब चिनारे थे, 2 प्रकार के चिनारे, अकृत्रिम और कृत्रिम। तो उस टाइम पे कृत्रिम तो नहीं, अकृत्रिम थे। अकृत्रिम माने वो कितने शाश्वत, वो जो नंदीश्वर द्वीप में होते हैं ना, उसको अष्टानी का कृत्रिम थे। कृत्रिम नहीं थे, नहीं थे। मैं गिरनार गया था अभी, वहाँ लेख लिखा हुआ है, ये मंदिर 5000 वर्ष पुराना है। इसमें क्या होता है, महावीर भगवान के पहले भी, महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान के बीच में भी कितना काल खाली रह गया था, तो उस टाइम का हो सकता है ऐसा, और वहां से फिर ऐसे चला। मतलब भगवान के काल में तो भगवान के समोसरण में जाते लोग साक्षात दर्शन करने जाते नहीं, लेकिन ये गिरनार पे 5000 पुराना ना, वो हो सकता है, बराबर। 700 भी हो गए, 5000 बस और 700 बहुत बढ़ गए। नहीं, वहाँ पर मानो मंदिर भी होवे, हाँ। तो वो तो भगवान के निर्माण के बाद में मानो मंदिर बना, हाँ, और मंदिर फिर रह गया ऐसे ही। निर्माण के बाद में नहीं, भगवान के समय भी मंदिर था। अरे वो तो था, मगर उस समय बना ऐसा थोड़ी है, उस समय से पहले भी हो। हाँ, उस समय पहले भी हो। तो ये जिनाने महाविष्णु में भगवान, जैसे अपन सुनते कि दियाना गए थे, चंद्रकोशिया को बोध दिया था, दियाना के बगल में कोई अगर देरासर है, वो 5000 पुराना है, तो मंदिर नहीं गए, उसका उल्लेख नहीं है कहीं। महाविष्णु भगवान ने कहीं देरासर का दर्शन किया नहीं है ना, नहीं है ना, इसका उल्लेख कहीं नहीं है, और वो गए भी नहीं है देरासर। अरे वो साथियों में भी मंदिर है जहाँ पे महाविष्णु में गए हैं, ऐसा बोलते हैं। जीवित काफी उनका तीर्थंकर का तो प्रभाव ही ऐसा होता है कि वो जहाँ जाते हैं ना वहाँ तीर्थ बनता है। उनके ऐसे ही पुण्य का उदय भी ऐसे विशेष ऐसा होता है। वो तीर्थ में नहीं जाते, वो जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थ कहलाता है, वो तीर्थ कहलाता है। लेकिन साधना के समय में भी, साधना के समय में तीर्थंकर के और बाकी जीवों की साधना का भी अलग अलग उसका अतिशय रहता है। साधना में भी अतिशय रहता है। हाँ, तो उसमें वो जन्म के अतिशय होते हैं, जन्म से ही रहते हैं, साधना नहीं की तब से ही अतिशय रहते हैं। जन्म के होते हैं, देवकृत होते हैं, केवल ज्ञान से होते हैं, कुल 46 प्रकार के है ना। तो लास्ट में क्या बता रहा था कि कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, जैसे वो आदि महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान को भी हुआ था। और ऐसा है कि आप अभी बहुत पाप कर रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि पाप इतना पाप कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन आत्मज्ञान प्रकट होने में कितना टाइम लगेगा। जिनको होता है उनको पूर्व के संस्कार यदि दृढ़ हो गए तो कुछ पल में ही हो जाता है।
और पूरे परिणाम पलट जाते हैं। कोई जीव ऐसे होते हैं कि भगवान के समूह शरण में जाते हैं। महावीर भगवान की ये बात ले लो कि महावीर भगवान जब शेर थे तब वो हिरण का शिकार करने जा रहे थे और शिकार में मुंह में मांस था और ऊपर से चारण निधिधारी मुनिराज आकाश से गमन करके चारण निधिधारी मुनि नीचे आए और उन्होंने कहा कि भाई तू 10 भव के बाद में तीर्थंकर होने वाला है और ये कार्य तुझे शोभा नहीं देता है। तो तब उसको जाके स्मरण ज्ञान हुआ और याद आया, उसने महावीर भगवान ने आदिनाथ भगवान के काल में मारी थी ना, जो उस पर्याय में वहां वाणी सुनी थी। आदिनाथ भगवान के ग्रांडसन थे महावीर भगवान उस टाइम पे, पहले तीर्थंकर के टाइम पे वहां पे। और उस टाइम पे महावीर भगवान के जीव ने उस मरीचि की अवस्था में आदिनाथ भगवान भगवान के विरोध में 363 मत की स्थापना की थी, जो भगवान के ऑपोजिट, भगवान के विरोध में थे। और वही जीव वहां सुना था ना, तो कुछ न कुछ, भले विरोधी भी ध्यान से सुनते हैं तो सुना हुआ अंदर संस्कार में तो रह जाता है, इसमें हो पाता याद है हमको। अच्छा, इसके लिए जो लोग विरोध करने के लिए बैठते हैं ना मेरे प्रवचन में, उनको भी मैं इनवाइट करता हूँ, आओ, क्योंकि ये भी विरोध करने के लिए आज सुना तो कल जाके कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो ये पहला तो वांचना, दूसरा है पृच्छना। आप किसी को प्रश्न पूछते हैं तो भी वो स्वाध्याय है, वो भी एक स्टडी है। और पढ़ने से ऊंचा स्वाध्याय पूछना है, क्योंकि पूछ वही सकता है जो जिसने कुछ पढ़ा हो। बिना पढ़े पूछेगा क्या? जिसको कुछ न कुछ नॉलेज है वही तो प्रिपरेशन करेगा। इसके लिए वो वाचना से बड़ा स्वाध्याय है, ऊंचा स्वाध्याय पूछना। तीसरे नंबर पे है प्रयत्न, जिसका मतलब है वो पाठ करना। तो भक्तामर का पाठ करते हैं या तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं, कोई न कोई पाठ करना, उसका नाम है प्रयत्न। उसमें और उपयोग स्थिर होता है। और उससे भी आगे तत्व चिंतन, जिसका नाम है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब कि किसी विषय को आपने सुना और उसके बारे में विचार किया। जैसे आपने आज सुना कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ। फिर आप हर एक काम, कोई भी काम करते हैं, काम करते वक्त आप यही सोचते हैं, आपके विचारों में यही रहता है, ये शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर की क्रिया मेरी नहीं है। तो फिर कभी भी ये खाना खाएंगे तो हाथ में खाना लिया, मुंह में डाला, तो उस समय आपकी अवेयरनेस है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। ऐसा वारंवार जो चिंतन करते हैं, उस चिंतन का नाम ही अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय, वो भी एक स्वाध्याय है। कभी भी आपको राग द्वेष होते हैं, क्रोध मान माया लोग के भाव होते हैं, उस समय आपकी जागृति, वो तत्व चिंतन ही है। ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। श्रवण ने कांच का गिलास फोड़ दिया, आपको गुस्सा आया, उस समय चिंतन किया, विचार किया, इसे उसने फोड़ा ही नहीं, ये मैंने फोड़ा है, तो गुस्सा चला गया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? नजर के सामने दिखा कि उसने फोड़ा, तो चिंतन किया कि मेरे घर का ग्लास फूटा तो ऐसे ही थोड़ी फूटा है, मेरे कोई पाप कोई किए होंगे, पाप का उदय आया है कि ग्लास फूटा है, तो रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, तो वो नहीं है, मैं हूँ। कि जब पाप का उदय होता है तो एक नहीं 10 ग्लास भी फूटते हैं। जब मेरे पाप का उदय नहीं होता तो वो श्रवण नहीं फोड़ेगा, वो तो निमित्त है। बस तो अपने कर्म के उदय के ऊपर अपन जब लेते ना किसी भी इंसिडेंट को कि मेरे किए हुए कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ, इसके पीछे दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा वो तो है ही कि आपके घर में वो जो ग्लास है, तो वो ग्लास में आपका पुण्य का उदय है, तो आपके घर में वो ग्लास है। जिस समय वो पुण्य का उदय नहीं होगा तो वो ग्लास भी घर में नहीं रहेगा, वो है। मगर पुण्य के उदय से जो मिला है उसमें अपनापन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे नहीं कहते। यहाँ पे तो ये कहते हैं कि वो पुण्य के उदय से मिला है, वो आपका है, मगर वो उदय भी पल भर के लिए है और वो वस्तु भी पल भर के लिए, इसलिए अपनापन मत करो। वो है आपका, मगर वो मोमेंटरी है, वो मोमेंटरी का रियलाइजेशन यहाँ पर करा रहा है। और हम कोई भी चीज अपने घर में लेके आते हैं
तो ये मान के लेके नहीं आते कि ये पल भर के लिए लाए। ये ग्लास जिस समय लेके आए तब यही परमानेंट मेरे घर में हमेशा के लिए लाया हूँ, ये किराए पे थोड़ी लाया है। तो पूछे कि कितने दिन के लिए लाया, नहीं पूरा पैसा दे के लाया, परमानेंट। कोई भी चीज अपन घर में लेके आते हैं तो परमानेंट विचार करके लेके आते हैं, और हर एक चीज मोमेंटरी ही होती है, परमानेंट होती ही नहीं है। और यही कारण है कि जब वो टूटती फूटती है तब वो हमें दुख होता है कि पहले से हमारी धारणा थी। यहाँ तक कि पत्नी भी लेके आते तो परमानेंट मान के लेके आते हैं, मगर वो भी जाती तो है नहीं कि वो जाती है, या तो हम खुद जाते हैं, किसी छुटा तो होना होता ही है। तो कट जाता है ना, कट जाता है। प्रायश्चित कैसे करना है? वही अगर मैं ऊर्जा की गलती नहीं है तो कट जाता है। प्रायश्चित करके हम लोग जा सकते हैं ना। आपको देवलोक में नहीं जाना है, नहीं, मोक्ष तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ना, बोला ना महावीर क्षेत्र सब। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड सेज आई एम पॉसिबल। I am possible. Nothing is impossible in this universe because impossible word says I am possible. I am possible. वो खुद बोल रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप मान रहे हो इम्पॉसिबल। आज तक कोशिश नहीं की इसके लिए। कभी अपन ये विचार नहीं करते गुस्सा करना पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं, वो उसमें इंटरेस्ट है ना, इसलिए नेचुरल होता है। यदि इस भाव में संस्कार दृढ़ हुए तो अगले भाव में महाविजय क्षेत्र में जन्म होगा, वहां से भगवान की वाणी सुन के वहां से भगवान से पहले मोक्ष में जा सकते हैं, ऐसा भी हो। मैंने आपको कहा ना 123 जीवे यहाँ से जाएंगे वीर्य क्षेत्र, और इस आरे में, इस आरे नहीं, बाकी के आरे में नहीं, पांचवे आरे 123, और उसमें भी फर्स्ट 3000 ईयर्स, तो टोटल 21,000 ईयर्स का पांचवा आरा होता है, और 21,000 ईयर्स में फर्स्ट 3000 3000 3000 ऐसे 7 पार्ट्स है। तो उसमें जो फर्स्ट 3000 है उसमें से 64 जीव, और सेकंड 3000 में 32, अभी फर्स्ट 3000 चल रहा है ना, 2,500 साल पूरे हुए महायुग में, तो उसमें 64, दूसरे में 32, अभी चांस ज्यादा है। हाँ अभी चांस ज्यादा है। थर्ड में 12, फोर्थ में 8, फिफ्थ में 4, सिक्स में 2, और सेवंथ में ओनली 1, टोटल 120। वो लोग खाली महावीर क्षेत्र में जाएंगे ना? महाविद्य क्षेत्र जाएंगे और 9 साल की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो 123। और मैंने आपको एक बार बताया था ना कि अभी आप यहाँ पर मेरे पास में बैठ के पढ़ते हैं, और आप यहाँ से मर के विजय क्षेत्र में आपका जन्म हुआ, और 9 साल के बाद में आपको केवल ज्ञान हुआ, आप अरिहंत भगवान हो गए, और 10 साल के बाद में मैं यहाँ पे ही पढ़ा रहा हूँ और क्लास की शुरुआत करता हूँ, नमो अरिहंताणम बोलता हूँ, जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता था मैं उसको नमस्कार करता हूँ क्योंकि वो अरिहंत हो चुका है। तो हो सकता है कोई भी जीव कैसे निकल जाए, इसलिए नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबडी, कोई भी जीव कुछ भी कर सकता है, यही परिणाम है। वो तो लिखा हुआ ही है ना, डेस्टिनी तो लिखी हुई, वो आपकी है, व्हाई डोंट यू थिंक दैट, वो आप है डेस्टिनी में। मैं बोल रहा हूँ वो फिक्स है, वो तो अनंत काल की डेस्टिनी फिक्स है। तो 64 जीतना है, उस जीव मैं गिन रहा हूँ, मेरा 64 में नंबर लगेगा। मेरे को तो मैं तो हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि आपका 63 में नंबर पक्का है। पहला मेरा, बाकी 63 आपका, बाकी कितना बाकी सौरवा भी क्यों। ऐसा विचार, यदि ऐसा विचार भी करते हैं ना तो वर्तन, बिहेवियर, अपना जो कंडक्ट है, आचरण है, वो भी सहज पलटता है। यदि मेरा उसमें नंबर है तो क्या ये कार्य मुझे शोभा देता है? ये नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां जाने वाला ऐसा नहीं करता है। ऑटोमेटिक यदि उसका विचार भी यदि शुरू हुआ ना हो जाए तो उसका आचरण भी पलट जाएगा। आदमी सोचता है कल मेरा आखिरी दिन है, ऐसा सोच के वो जिएगा ना तो कुछ पता करने वाला ही, कल मैं मरने वाला हूँ, वो सोचता है मैं कल मरने वाला हूँ,
उसका लास्ट दिन कल ही है, तो वो क्या आज से सोचेगा कि मैं कल के लिए क्यों पूरा करूँ, एक ही दिन तो जिंदा रहने वाला हूँ, आज से छोटा छोटा छोड़ दो, कल मरने वाला हूँ। और एवरी दिन तो सोचता है कि मैं कल मरने वाला हूँ, तो सोचेगा वो कभी गलत करने वाला नहीं, तो वह तो नहीं था वो लास्ट दिन समझोगे, वो लास्ट आपको मालूम ही नहीं है लास्ट दिन कौन सा है, और लास्ट दिन भी मालूम नहीं, और कल लास्ट दिन ऐसा सोच के जिएगा तो शायद वो जिंदगी में कुछ कर अपने तो 64 में नंबर लगाने का, बस सीधी काम हो गया। पहले तो सर्कल तेरे 62 में 61 ऐसा ही है लाइफ का। वो मोक्ष पक्का जाती है। नहीं जरूर वापस आ ही करते हैं। ये सुबह से ले इसमें मरण कारण में लिखा है कि जब जन्म होता है बच्चे का तो उसका पहला कपड़ा होता है वो उसको जबला बोलते हैं, और आखिरी कपड़ा होता है उसको कफन बोलते हैं, और दोनों में समानता है कि जेब नहीं है। तो फिर बीच वाला जो कपड़ा है उसको उसकी जेब भरने के लिए इतने पाप हम क्यों करते हैं, और उसमें भी पाप करता है तो उसके शरीर का विचार नहीं करता है। पूरे दिन भर सुबह से लेकर रात तक वो कितना काम करेगा, इतना काम करेगा, और काम करके शरीर को बीमार करेगा और पैसा कमाएगा, फिर वो कमाए हुए पैसे से शरीर को ठीक करेगा, पहले खराब करेगा, पहले खराब करेगा, फिर उसको शरीर को उसका पैसे से ठीक करेगा। उसमें ऐसा लिखा है वो जीता है इस तरह जैसे मरने ही वाला नहीं है, और मरता है इस तरह जैसे जिया ही नहीं है। तो श्रीमद रामचंद्र जी ने कहा है कि मरने के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना। तो सुबह आंख खोले तो बस आज ही मेरा मरण है, कल भी नहीं। मरने के लक्ष्य से जीना, बस अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा, और जीने के लक्ष्य से मरना। जब मरना आए तो अच्छी तरह से नहीं जिया, तब नहीं, तब अनंत काल के लिए मैं जीने वाला हूँ। आई एम द सोल, आई विल नेवर डाई। तो मैं जीने वाला हूँ। मरने के लक्ष्य से जीना और जीने के लक्ष्य से मरना। और ये सब मोमेंटरी, एक पल में सब समझ में आता है कि जिनको अपन अपना कहते हैं वो पल भर में पलटते हैं कि ये पिताजी मेरे है, पिताजी बीमार है, डॉक्टर के पास में ले गए, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया, डॉक्टर ने बोला 5 करोड़ का खर्चा होगा। 5 करोड़ ही अपने पास में था, पूरा खर्च करने के लिए तैयार हो गया कि नहीं, जिस पिता ने मेरे को 5 करोड़ दिए उनके लिए खर्च करने के लिए तैयार हूँ। ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 करोड़ का खर्चा है। लेके गया, लेके जा रहा था, उस टाइम पे पिताजी की डेथ हो गई। 5 करोड़ तो चलो बच गए। वही पिताजी मर के बिल्ली बने, अपने घर में आए, किचन में गए, 5 रुपए का दूध पड़ा था, नहीं पीने दिया, मार के बिल्ली को भगा दिया। आत्मा वही है। वो याद भी आ जाए ना ये पिताजी का है तो भी वो मानने को तैयार, मन तैयार नहीं होता। ये सब मोमेंटरी है, सब समझ में आता है कि इस भाव के लिए ही है और कुछ नहीं। और जिनको ये रियलाइजेशन हो गया है उनको फिर दुख भी नहीं होता है, उनको दुख नहीं होता है। कभी वो पिता को हुए कि बिल्ली बन गया है और देखो मेरे को 5 रुपए का दूध नहीं पिलाया, मेरे 5 करोड़ रुपए छोड़ के गया, दुख नहीं होता है। संसार ऐसा ही होता है। बट वो बिल्ली को मुझे मालूम नहीं ना कि उसके बेटे का घर है। अरे हो भी जाए तो भी उसको, ज्ञानी यदि होवे तो ज्ञानी को ये दुख नहीं होता है किसी भी प्रकार की। अज्ञानी को मालूम नहीं पड़ता है, ज्ञानी को दुख नहीं होता। ज्ञानी को जगत की प्रत्येक घटना में आश्चर्य नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। आप कोई साड़ी अभी 500 रुपए की बेचते हैं और कोई साड़ी 400 रुपए की वही बेचता है सामने की दुकान में, और कोई कस्टमर लेके वहां से 400 की खरीद के आया, तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दुनिया ऐसी है, जिनको जहाँ सस्ता पड़ेगा वहां जाएगा। तो जैसे अपन वो बात समझ में आ जाती है कि बराबर है वो, तो ऐसे ही संसार में हर एक घटना आश्चर्य करने वाली नहीं लगनी चाहिए। ये तो शरीर छोड़ने के बाद की बात छोड़ो, अभी यही शरीर में है, फिर भी पिता है, बेटा है, ये मानता है कि ये मेरा बेटा है,
कभी मानता है कि बस ये मेरा नहीं है, अंदर से मान क्योंकि सुख बुद्धि जो है ना कि बस उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। यदि उसका मानता है बेटा तो वो मेरा है, मानता नहीं है तो मेरा नहीं है। अखबार में डिक्लेयर कर देता है कोई इसके साथ में कोई भी प्रकार का संबंध रखेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये मेरा नहीं, आज से मेरा कोई संबंध नहीं है, बस क्योंकि मेरा माना नहीं उसने। तो ये जिसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं वो भी अंदर से तो वो रहे नहीं कि मेरा अपना नहीं रहा, अपनापन नहीं रहा। ज्ञानी उसे कहते हैं जो उसका बार बार चिंतन करते हैं, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। और जब चिंतन करके आपको इतना ज्ञान होवे कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना धनराज भाई समझा सकते हैं, रवि भाई समझा सकते हैं, तो वो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय करते हैं, फिर दूसरों को समझा देते हैं। थोड़ा बहुत समझाएंगे, जितना समझाएंगे सच समझाएंगे, नहीं आएगा तो फिर मना भी कर देंगे ये नहीं मालूम, तो वो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय होता है। और वो स्वाध्याय सबसे ऊंचा है, किसी को समझाने का स्वाध्याय जो है वो सबसे ऊंचा है। उसका कारण मैंने बताया था कि जो समझने वाला है उसका अटेंशन 60 मिनट में से 55 मिनट भी हो सकता है, 50 मिनट भी हो सकता है। समझाने वाले का 60 मिनट कंप्लीट अटेंशन है उसमें, इसलिए पूरा बेनिफिट समझाने वाले को हुआ है। स्वाध्याय भी होगा, चिंतन यही तो। और टोडरमल जी ने तो यहाँ तक लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम के शास्त्र में कि वक्ता, धर्म का प्रवचन करने वाला वक्ता ये मान के प्रवचन देवे कि मैं ऊंचे आवाज में अपना खुद का स्वाध्याय कर रहा हूं। इस स्वाध्याय तो ये 5 प्रकार के स्वाध्याय की चर्चा हुई थी। अभी 237 नंबर का प्रश्न है, जो साप करड़वा माटे आवे तो तेने मारवो के नहीं, केम? यदि सांप काटने आएगा तो उसे मारना चाहिए या नहीं? ये प्रश्न मैंने नहीं बनाया, ऐसे 1000 प्रश्न मैंने बनाए, उसमें एक खास प्रश्न है जो मैंने नहीं बनाया, तैयार नहीं किया। ये प्रश्न कॉपी पेस्ट किया है। गांधी जी ने श्रीमद राजचंद्र जी को प्रश्न पूछा था। गांधी जी ने श्रीमद राजचंद्र जी को 27 प्रश्न पूछे थे। उन 27 प्रश्न में से ये भी एक प्रश्न था। श्रीमद राजचंद्र जी, नाम सुना आपने? श्रीमद राजचंद्र जी महाराज गुरु आत्मज्ञानी, ज्ञानी था, पांचवा। तो गांधी जी को मिले थे। चर्चा पत्र से चर्चा हुई थी गांधी जी की श्रीमद राजचंद्र जी के साथ, और गांधी जी ने भी कहा है गांधी जी उनको अपने गुरु मानते थे, श्रीमद राजचंद्र जी। और गांधी जी के जीवन में 3 लोग आए जिससे गांधी जी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। 3 फिलोसोफर, उसमें टॉल्स्टॉय, रस्किन और श्रीमद राजचंद्र जी। और उसमें गांधी जी खुद कहते हैं कि श्रीमद राजचंद्र जी से जितना मैं प्रभावित हुआ हूँ उतना तो टॉल्स्टॉय और रस्किन से भी प्रभावित नहीं हुआ। तो वो श्रीमद राजचंद्र जी के सामने ये प्रश्न किया, उसमें बहुत सारे प्रश्न थे कि ये मारना चाहिए कि नहीं, इस टाइप का ही है कि मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि आप घर में हैं, आपकी पत्नी भी है, बच्चे हैं, दरवाजा बंद है, वहां से किसी ने दरवाजा खटखटाया, आतंकवादी था, उसने कहा दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले लो, मेरे पीछे 2000 लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे मार देना चाहते हैं क्योंकि वो मुझे आतंकवादी समझते हैं। मैं आतंकवादी हूँ मगर आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ। उस वक्त आपको दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यदि आप धर्म का जो थ्योरी पढ़ना अलग बात है, इम्प्लीमेंट क्या करेंगे? आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, बीच में कुत्ता आया,
आपके साथ में दूसरे 4 लोग भी है, आपके बाजू में एक है, पीछे 3 बैठे हैं, ब्रेक मारेंगे कि नहीं मारेंगे? और पीछे एक ट्रक आ रहा है, क्या करेंगे? कुत्ते को मारेंगे कि नहीं मारेंगे? दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसमें आप क्या करेंगे? मैंने एक को पूछा था ये प्रश्न, हस्बैंड वाइफ दोनों क्लास में बैठे हुए, तो दरवाजा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? हस्बैंड ने बोला कि मैं तो खोल दूंगा, क्योंकि वो इतना प्रायोजित करता है, बस कोई भी चीज पलट सकता है, कभी भी उसको रियलाइजेशन हुआ बस जब नहीं करना। वाइफ बोलेगी मैं तो नहीं खोलूंगी, मैं तो नहीं खोलूंगी, क्योंकि उसका क्या भरोसा है? पहले बोलता है, फिर अंदर आके फिर अपने ऊपर प्रहार करे, बच्चों के ऊपर प्रहार करेगा, और पीछे 2000 लोग भी है, 2000 लोग अपने ऊपर प्रहार कर सकते हैं, इसको अंदर लिया तो दोनों में बहुत बहस हुई। फिर हस्बैंड क्या बढ़ गया, तेरे बाप के घर से घर लेके आइए, मेरा घर है, दरवाजा नहीं खुलेगा, मैं चिंता मत करो, दरवाजा खुलेगा। वो बोलता है बोला खोले, कोई दरवाजा आतंकवादी नहीं आया इधर, मैं तो खाली आपको पूछ रहा था, उसमें आप इतने उछल गए कि नहीं नहीं दरवाजा तो खुलेगा। पत्नी बोले कि नहीं खुलेगा, आधे घंटे तक बहस नहीं। कथा स्थिति बता नहीं आया तब तक, तब से ही ऐसा है, तो आएगा तब क्या होगा मालूम नहीं। मगर ऐसा है, शास्त्र में प्रैक्टिकली सब बताया है कि क्या करना चाहिए, और उन सब प्रश्नों का जवाब भी आगे आएगा। ये जो आपको प्रश्न मैंने 2 एग्जांपल दिए वो भी आगे आएगा। ये भी ऐसा ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर सांप काटने के लिए आता है आपको, तो आपको उसे मारना चाहिए कि नहीं? ये तो सांप का एग्जाम्पल है, बाकी सांप ले लो, बिच्छू ले लो, कुछ भी। यदि आप सांप को मार देते हो तो मर गया, आप बच गए, और यदि नहीं मारते हो तो आपको मरना पड़ेगा, वो काटेगा। तो क्या पसंद करते हो? ऐसा ही ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर श्रीमद राजचंद्र जी ने दिया है, जेने शरीर में अत्यंत प्रीति है एवा सांपने जेने देहनी प्रीति घटी है एवो मनुष्य केम मारी सके। आप तो इतनी सालों से धर्म सुनते आए हैं, तो आपको थोड़ा तो समझ में आया कि ये शरीर मेरा नहीं है, तो थोड़ा तो शरीर का मोह आपका कम हुआ है। और सांप को तो कुछ भी मोह कम नहीं हुआ है, क्योंकि उसको तो कोई ज्ञान भी नहीं मिला। पूरी एकत्व बुद्धि, पूरी ममत्व बुद्धि, पूरी एकता शरीर के साथ में पड़ी हुई है। तो स्वाभाविक है कि आपको कोई मारेगा, जिसको कम अपनापन है उसको कम दुख होगा, जिसको ज्यादा अपनापन है उसको ज्यादा दुख होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ग्लास फूटेगा, तो आपने माना कि ये मेरा है, आपको दुख होगा फूटा हुआ देख के। तो फूटता हुआ देख के मैंने भी देखा, मगर मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना नहीं माना। और घर में और भी है जिन्होंने अपना माना है, मगर उन्होंने इतना अपनापन नहीं है, उनको इतना अच्छा नहीं लगता था, उनको कम दुख होता है। तो किसी को ज्यादा दुख, किसी को कम दुख, किसी को बिल्कुल दुख नहीं होता। तो फूटना दुख का कारण नहीं है, अपनापन जो है वो दुख का कारण है। इसमें मरना तो ऐसा ही बता रहे हैं। तो वो जो सांप जो है, तो सांप को ज्यादा दुख होगा क्योंकि उसको अपनापन ज्यादा है, और अपने को कम दुख होगा क्योंकि अपनापन थोड़ा कम हुआ है। ये सुन के अपन मनुष्य समाधान कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जिनको अपने शरीर में इतनी कम प्रीति है, कम प्रीति वाला जीव जिसको शरीर में ज्यादा प्रीति है, ऐसे आत्मा को शरीर से अलग कैसे कर सकता है? उसको देखेगा कि मेरे को कम दुख होगा, उसको ज्यादा दुख होगा, तो मुझे उसे नहीं मारना चाहिए, मैं तो समाधान कर लूंगा। ये उत्तर दिया है। कितना विचार किया? भूमिका अनुसार भूमिका ऐसा सोचते नहीं है ना लोग। इतना 1 सेकेंड में तो मतलब वो तो श्रीमद राजचंद्र जी थे। पहले भी कहा ना, एक इंद्रिय को ज्यादा ममत्व होता है अपने, क्योंकि उसका अपनापन करने के लिए कोई दूसरा पदार्थ नहीं है ना। अपना अपनापन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इतने सारे लोग, इतनी इंद्रियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इतने सारे लोगों में हो गया, एक इंद्रिय का कोई दूसरा नहीं। अपना अटैचमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मानो कि
शादी हुई तो पत्नी में अपनापन है, मगर वो अपनापन बच्चे होने के बाद में इतना नहीं रहता है, क्योंकि वहां से वो डिवाइड हो गया ना, सिर्फ थोड़ा बच्चे में चला गया, थोड़ा इधर इतना टाइम भी नहीं दे पाता है। 2 बच्चे होंगे तो फिर और अपनापन कम हो जाएगा पहले वाले बच्चे का। साथ में पंचील भी है, उसको महत्व ज्यादा रहेगा, तो उसके रिलेशन में उसको फिर आगे कहते हैं, મુમુક્ષુ જીવે એ વિચાર કરવો જોઈએ કે મંદ કશાયથી પણ જો મને દુઃખ થાય છે તો જેને તીવ્ર કશાય હોય તેવા જીવને મારવાથી બીજા જીવને કેટલું દુઃખ પહોંચશે. ખરેખર નિશ્ચયથી જીવની દ્રષ્ટિ પોતાના પરિણામ તરફ હોવી જોઈએ. અન્ય જીવને દુઃખ પહોંચે કે નહીં એવા વિકલ્પ કરીને મન ફાવે તેમ વર્તન ન કરવું જોઈએ. इसमें ये बता रहे हैं कि किसी दूसरों को हर्ट होगा या नहीं होगा वो आप मत सोचो, आप ये सोचो कि मुझे हर्ट नहीं करना है. मुझे अपने आप को नहीं करना है कि सामने अपने आप उसको हर्ट नहीं करना है, ऐसा भाव मुझे रखना है. उसको हर्ट न भी हो सकता है, कोई पहलवान है, पहलवान को एक मैंने मुक्का मारा, उसको कुछ हर्ट नहीं हुआ है, मगर मेरा तो भाव था ना उसे मारने का, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको तो वैसे भी लगने वाला नहीं है, चलो मारो. तो वो भाव से मैं तो मर गया, इस भाव से मैं मर गया, कर्म तो मैंने बांध लिए. वीडियो में चलते रहते, बस भाव बहुत पागल है. कि कश्मीर में भारत के जो सैनिक लोग हैं उनको कितने लोग मर रहे हैं, वो कुछ करते ही नहीं है जी. मैं वहां पे होता तो एक को भी नहीं छोड़ता पाकिस्तान वाले को, मैं मारने नहीं गया, मगर यहाँ बैठे भाव कर लिया, पूरे कर्म बांध लिए. पता है कि अपन मस्ती के लिए कर रहे हैं, उसमें क्यों रियल में कोई अपने को पता है जी है ही नहीं सामने, तो उसमें क्यों फायदा? बराबर मैंने मारा, अपने को पता है अगर असली में कोई खेल रहा होता तो अपन नहीं मारते, अपने को पता है सामने कोई है ही नहीं, सिर्फ एक और वीडियो है, उसमें काम नहीं लगना चाहिए. वो भाव जो है ना, मारने का भाव, वो संस्कार उसके अंदर, उसके वृत्ति अंदर दृढ़ होती है. उस समय आपने वो शास्त्र में पढ़ा नहीं है, वो कपड़े का वो मुर्गा बनाया और उसको काटा, इसने कहा कि आपको मुर्गा काटना पड़ेगा, तो बोले मैं तो मुर्गा काट नहीं सकता, हिंसा होती है. कपड़े का बनाया और फिर कपड़े का बना के फिर तलवार से काटा, पाप तो वही लगा. और भाव बोले वहां पर कोई मरता नहीं है, मतलब उसके जो भाव है वो स्वयंभू रमण समुद्र के वो मछली का जो एग्जाम्पल आपको नहीं मालूम, वो संदूल मत्स्य, एक बहुत बड़ा मत्स्य होता है, मछली बहुत बड़ा मछली होती है, बहुत बड़ी, और उसकी पलक पे एक छोटी मछली होती है जो कितनी तंदुल माने चावल की जितनी छोटी होती है, और बड़ी मछली होती है ना, उसका मुंह है ना ऐसे खुला रहता है, तो उसके मुंह में सब छोटी छोटी मछलियां अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है, मुंह खुला ही है. ये देखती है तंदुल मछली जो छोटी, कि ये क्या कर रहा है, बड़ा मछली हो, अंदर जाते हैं छोटी छोटी मछली मुंह बंद क्यों नहीं कर देती. यदि मैं होती तो एक को भी बाहर नहीं जाने देती, बंद कर देती, खा जाती. पर वो खाने थोड़ी वाली थी, उसका पेट इतना छोटा था कि उसमें एक मछली भी अंदर जाने वाली नहीं है, मगर उसके अंदर विचार भी ऐसा आया कि मैं होती तो एक भी नहीं छोड़ती. इस विचार के कारण 7वें नरक में जाता है वो तंदुल में, 7वें नरक में, 6वें में नहीं. महाराजा ने कसाई को नहीं बोला था वो, और वो भाव सामने वाले की, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना थाईलैंड में, जब मेरे आचार्य यूनिवर्सिटी का, कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था और एक स्टूडेंट ने मेरे को पत्थर मारा, और मेरा अहिंसा के ऊपर लेक्चर दे रहा था, तो उसे पत्थर मार और फिर सर बच गया. क्या कर रहे हो, तो बोले लगा तो बोलना, अभी लग जाता तो क्या नहीं. फिर मैंने उसको आपको बताया कि उसको पाप लगेगा कि नहीं, पाप तो लग गया, भाव था, पाप तो उसको तभी लग गया जब वो पत्थर उठाने से पहले भाव आ गया ना, तभी पाप लग गया.
दूसरा क्या है कि ये सब हो गए वीडियो गेम से अंदर के विचार में कितने ही प्रकार के पाप बनते हैं। खाली पाप मारने का पाप नहीं है, मान्यता में, सदा मान्यता में मैं ये कर सकता हूँ, ये वाह मार सकता हूँ, ये वाह, भले असल में नहीं तो वीडियो गेम में तो मार खेलते खेलते वो प्रति की दृढ़ हो जाती है। संस्कार है कि नहीं, संस्कार उसको दृढ़ हो जाता है। छोड़ दो ये काले चीजों से फ्री है, चीजों से फ्री हो, वैसा वैसा नहीं। कभी रोज पेपर मान है, ₹1 के लिए उसने मार जीव ले लिया, 8 आने के लिए जीव ले लिया, एक बीड़ी के लिए जीव ले लिया, एक सिगरेट के लिए लिया, दारू की बोतल के लिए। तो ये सब क्यों होता है? कारण वही है, टीवी देखने नहीं दिया, छोटे बहने बड़े बोले टीवी देखने में क्या पाप है? अपने तो कुछ कर ही नहीं हो, हमने करने वाला हो, सामने वाला अपने क्या करें, फिर भी अपने को पाप लगता है कि भाव अपने जो है ना, अपने विचार जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बस, और वही वो पाप का कारण। अपना थिंकिंग जो भी है, विकल्प विचार, पाप का असली कारण वो है। सही है। संस्कार होते हैं, यही प्रैक्टिस छूटने की करो, ये मारने की कर रहे हैं। अभी उसमें आया कि वो जिसको मुमरा में एक कोई मुस्लिम भाई था, उसकी शादी हो गई थी, एक शादी कर ली थी, फिर बाहर दूसरी शादी किसी से कर ली, और फिर हॉस्पिटल में ये कुछ बीमार हो गई, हॉस्पिटल में था। तो जो पहली वाली पत्नी थी वो उसकी ट्रीटमेंट कर रही थी, उसके साथ में बैठी हुई थी, तभी ये उसका हस्बैंड है, दूसरी वाली जो है उसका हस्बैंड ये है, ऐसा उसकी फ्रेंड को मालूम था दूसरी वाली पत्नी की। तो उसने उसको हॉस्पिटल में देख लिया और उसको बता दिया कि तेरा हस्बैंड तो हॉस्पिटल में, तू यहाँ पे क्या कर रही है? तो ये वहां पर हॉस्पिटल में गई और वहां पर वो पहली वाली पत्नी भी बैठी थी। तो पता चला, फिर बोले कि ये मेरा हस्बैंड है, बोले मेरा हस्बैंड है। दूसरी वाली को तो इतना गुस्सा है, बोले कि ये हस्बैंड मेरा ही है। बोले कि वो पहले सब तेरे साथ शादी की थी, पहले मेरा हस्बैंड था, लेकिन नहीं वो तेरा पुराना था, वो सब छूट गया, अभी फ्रेश तो मेरा है, नया तो अभी वैलिड ये गिना जाएगा। इतना गुस्सा है उसको। वहां से फिर ये साउथ बॉम्बे में किसी से उसने अफेयर किया, पैसे वाले से, वो दूसरी वाली पत्नी ने साउथ बॉम्बे में किससे अफेयर किया, और अफेयर करने के बाद में कुछ 3-4 महीने साथ में रही, फिर उसको बोला कि मेरे को 3 लाख रुपए दो, मैं तुमको दे दूंगी। 3 लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए वहां मुमरा का एक गुंडा है उसको दिया, और वो पहली वाली पत्नी को मरवा दिया। एक छोटी, एक देखो ना, अब ये संस्कार कहाँ उसमें भी आएगा, पेट्रोल में भी आएगा ना। तो अगर ऐसा गेम ये बताने का हो तो पुण्य मिलता होगा, किसने ऐसा वीडियो गेम है जिसमें अपने देश तो इसके लिए वीडियो गेम बचाने वाला खेलना मत करना। साफ लगता है इलेक्ट्रिसिटी का वो पुण्य, तो जीव बचाने का पुण्य भी मिलता होगा ना। अगर साफ लग सकता है तो पुण्य हो सकता है ऐसा। दृढ़ता जो है वो बढ़ाने के लिए, लेकिन वो दैट इज नॉट वो प्रैक्टिकल, वो राइट वे नहीं है। क्योंकि है ना वहाँ पे ऐसे भाव तो दूसरी जगह भी बैठ कर सकते हैं, दूसरी जगह भी बच्चों के लिए तो अधिक में जनरली सवाल, बच्चों की बात करो तो बात अलग है। बच्चे संस्कार तो देखो ना, छोटे लड़का यदि होगा छोटा तो बचपन से ही लेके वो रिवॉल्वर से पिस्तौल, पापा पिस्तौल पिस्तौल पिस्तौल, और लड़की होगी तो वो खिलौना, माने वो डॉल होगी या तो फिर किचन का सेट होगा, ऐसा कुछ उसको पसंद आता है। लड़के को पसंद नहीं आता है, लड़की को पसंद नहीं आता है, वो पिस्तौल वगैरह पसंद नहीं आएगा लड़की को। और बड़ी होके फिर वो ही होगा कि बच्चा वो लकड़ी लेगा या लड़ाई झगड़ा करे पिस्तौल लेगा, और बड़ी होकर घर संसार बसाएगी। वो संस्कार तो बड़ा है नहीं। चलो बहुत कम किस्से ऐसे होते हैं जिसमें वो प्रैक्टिस ही उसकी बचपन से ऐसी होना। अब वहां पर तो वो खिलौने की पिस्तौल से ही खेलता था, बड़ा होने के बाद में भी वो हिंसा पे आ गया। इसके लिए जो एनवायरमेंट भी है ना, वो घर का कैसा है, किस प्रकार, वो नेचुरल संस्कार ऐसे बनते हैं।
और जो बचपन से जो मिले संस्कार है वो फिर लॉन्ग टाइम के लिए रहते। एक बार यदि आपने कोई चीज चखी है और फिर उसको आपको छोड़ना हो तो बहुत डिफिकल्ट होगा, और जो जन्म से खाया नहीं है उसको खाना फिर उतना ही डिफिकल्ट होगा, आप नहीं खा पाएंगे। जैसे आपने जन्म से मांस नहीं खाया, मांस नहीं खा पाएंगे। आलू खा लिया, स्वाद चखा और छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। कितना नियम ले लेते हैं, घर पे नहीं बनता है, बाहर जाके खाते हैं, बाहर नहीं खाते, इंडिया में नहीं खाते, बाहर फॉरेन में तो खाते हैं। तो कितने नियम डिफिकल्ट है। बच्चा जैन और बचपन से मांस खाएगा तो उसको उसके बाद में वो लगता ही नहीं कि मैं मांस खा रहा हूँ, तो टेस्ट ही ऐसा बन जाता है। और जो मांसाहारी वाला अगर वो नहीं खावे बचपन से तो उसको टेस्ट ही खराब होता है। और कई लोग ऐसे घर में भी होता है, 10 लोग खाते हैं और 2 लोग नहीं खाते, कई बार होता है। कई घरों में ऐसा होता है कि वो घर में रोज सामने ही पकता है फिर भी नहीं खाते, क्योंकि वो होगा संस्कार है उसको, तो उससे अटैचमेंट हुआ ही नहीं इसको वो चीज। कांदा आलू तो सरकारी है, सरकारी में क्या पाप है, मतलब हर चीज में इसमें जीव होते हैं। अभी आप लोग कांदा में जीव होते हैं, नहीं वो हमारे ज्यादा खाने में आता है, लिवर तो होती है ना, बाकी खाने में वो कांदा हर एक चीज में डलता है, आलू में सब में डलता है, सब सब्जी को। इसके लिए जो ज्यादा पाप जिसमें होता है उसमें मतलब आलू में कांदा में पाप है, सरकारी में साइंटिफिकली भी आलू, साइंटिफिकली भी साइंस वाले भी कहते हैं कि आलू में बहुत सारे जीवाणु, हाँ जो हर जीव में होते हैं। आपको बताया कितने जीव है जो अपन रोज साधारण 10 मिनट बाद नहीं ये चर्चा, ये हाँ बीच में। तो ये प्रश्न है, मैं आपको पूरा कर देता हूँ, उसके बाद में आपके प्रश्न ले लेता हूँ 5 मिनट में, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके पीछे का एक प्रश्न भी आज ले लो। नहीं वो नहीं ले रहा हूँ, नहीं अभी ये बात नहीं, पर्याय क्रमबद्ध है, नहीं अभी ये बात नहीं है, वो चल रहा है ना, साफ वाला चल रहा है। અન્ય જીવને દુઃખ નહીં પહોંચે એવા વિકલ્પ કરીને મન ફાવે તેમ વર્તન ન કરવું જોઈએ। પ્રત્યેક જીવે પોતાની ભૂમિકા અનુસાર વર્તવું જોઈએ તથા તદનુસાર વ્યવહાર કરવો જોઈએ। अपनी अपनी भूमिका अनुसार करना चाहिए। ये बात है कि हिंसा तो अभी होगी, पाप तो होगा, घर में रहते हैं तो पाप होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे तो वहां पर भी पाप तो होगा, गाड़ी यूज करेंगे तो वहां भी पाप होगा। तो पाप तो कदम कदम पे होता है। जैन धर्म में ये कहा है कि बड़े पाप से छूट के कम पाप है वहां पे जाओ। अमेरिका में सब लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न? उसमें मांस में भी जीव है, आलू में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, और आप ये भिंडी की सब्जी खाते उसमें भी जीव है। जीव तो सब में है, तो चिकन में भी जीव है और वनस्पति में भी जीव है। तो आप भी पाप करते हैं, हम भी पाप करते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मांस पहले छोड़ दो? तो उसमें बड़ा और छोटे का भेद वहां पर नहीं है। वो भेद यहाँ पर जैन धर्म में ये समझाया है कि वहाँ पंचेंद्रिय जीव का घात होता है, वहाँ मांस भक्षण का पाप लगता है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव जो है ना, भिंडी की सब्जी है वो भी किसी का शरीर है ना, उसमें जीव था तो मांस खा रहे कि नहीं, किसी के शरीर को खाते हैं तो, मगर ना मना किया है नहीं, क्योंकि मांस की डेफिनेशन जो बताई है वो उसमें कैटेगराइज किया है 2 सेंस से लेके 5 सेंस तक का जो बॉडी है उसका ही मांस, उसका शरीर का ही मांस कहा। एक इंद्रिय को मांस नहीं कहा। तो पानी पीते हैं वो मांस नहीं खाया, वनस्पति खाते वो मांस नहीं है, श्वास लेते हैं वो हवा जाती है वो मांस नहीं है। वैसे आलू मांस में नहीं आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल, मगर अनंत जीव है उसमें, लेकिन तो भी मांस से तो बहुत कम है। अभी एक गाय है, एक पंचेंद्रिय है और एक आलू है जिसमें अनंत एकेंद्रिय है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, उसमें अनंत एकेंद्रिय जीव मरते हैं, वहाँ गाय में एक पंचेंद्रिय। आप क्या सिलेक्ट करेंगे? कि दोनों छोड़ना चाहिए, मगर 2 में से ऑप्शन एक सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? आलू, उसमें तो एक पंचेंद्रिय है, कितने सारे अनंत एकेंद्रिय है। वेरी गुड, अनंत एकेंद्रिय, कि उसके मांस में भी अनंत एकेंद्रिय जीव है, अपने शरीर में भी है, बैक्टीरिया में। तो ये જીવે વ્યવહારમાં સંતુષ્ટ ન થવું જોઈએ। જીવનું ધ્યેય પરિણામોમાં ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ વધે એ જ હોવું જોઈએ।
अपन क्या करते हैं कि क्रिया तो करते हैं मगर क्रिया में ही अटक जाते हैं। पानी छान के पीना चाहिए, छान के पानी पीते हैं। अभी जिसने छान के पानी नहीं पिया उसके ऊपर तो इतना गुस्सा आ जाता है कि देखो जैनों के अनछना पानी पीता है, जैनों के अनछना पानी पीता है। तो उसमें जो कर्म बांधता है ना वो भी कम नहीं कर्म बनते। जैन धर्म में 2 बताया है, राग भी नहीं करो, द्वेष भी नहीं करो। राग माने लव, द्वेष माने हेते। आपको आलू का राग नहीं होना चाहिए खाने का, और दूसरा कोई खाता है तो उसकी तरफ द्वेष भी नहीं होना चाहिए, उसका नाम धर्म है। तो जब तक द्वेष नहीं करेंगे उनको समझा नहीं पाएंगे मैं आपके ऊपर द्वेष करता हूँ आपको समझाने के लिए। आपको जो भी कहता हूँ कि आप अपने शरीर का मोह छोड़ो, तो वो समझाने के लिए मुझे द्वेष करना जरूरी है। अभी सपोज घर पे माँ आलू प्याज नहीं खाती है, बच्चे को बोलती है बेटा मत खा, तो प्याज से तो बच्चे समझ नहीं पाए, गुस्सा करेगी मत खा तो आपसे नहीं खाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा समझाने की मेथड ही गलत है। कभी भी बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्या होता है कि वो दबा हुआ होता है, स्प्रिंग की तरह होता है, उछल के फिर एक साथ में कषाय आ जाएगा। वो घर में नहीं खाएगा, बाहर जाके खा रहे। ऐसा होता ही है। और ऐसा घर में ऐसा होता ही ना, घर पे बोलते रात को नहीं खाना, रात की भोजन त्याग करो, ये करो, जबरदस्ती बच्चे से करवाते थे तो बेचारे बाहर जाके। मैंने आपको बोला बाल दीक्षा जो होती है ना, बाल दीक्षा में यही तो होता है कि बच्चा है, बच्चा 8 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, तभी वहां तो उसको कोई ऐसे भाव आते ही नहीं है शादी करने का, तो चलता है। और ऐसा बड़ा होता है फिर वो दीक्षा छोड़ देता है। भाव तब आते हैं, तो पहले भाव नहीं थे, दबे हुए पड़े थे, जब वो टाइम आता है तो भाव उछलते तो फिर वो दीक्षा छूट जाती है। तो समझ के पूर्वक जो होता है ना वो रियल होता है। बच्चे को समझ बेटा नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं है, अच्छा वो ठीक बात है। आज तक मैंने किसी को खाना तो दादागिरी 40 वर्ल्ड के 40 देशों में, मेरे स्टूडेंट में 40 देशों में 1800 लोगों ने नॉनवेज छोड़ा है, और मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि तुम नॉनवेज बंद कर दो। मेरा काम खाली इतना है कि नॉनवेज और ये वेज, मांस है और वनस्पति है, 2 में क्या डिफरेंस है, और 2 में जीवों की जो हिंसा होती है उसमें क्या डिफरेंस है, ये बता रहा है। सामने वाले को छोड़ना नहीं छोड़ना तो उसके ऊपर। मैंने एक ट्रेन में पूछा, अगर कोई मुर्गी है, मुर्गी काटते हो, काट के मांस बनाता है, जो ट्रेन में सर्व कर रहा है, वो मानता अरे जो मांस आ रहा है वो मुर्गी बीमार थी, तो कैंसर था, टीबी थी, क्या था आपको तो मालूम नहीं है। उन्होंने आगे फर्स्ट क्लास प्रेजेंटेशन किया, आपने खा लिया, तो आपको तो मालूम है बीमार मुर्गी थी कि क्या थी, वो बीमारी आपको भी लग सकती है। अरे बीमार नहीं भी हो, मगर ऐसे हांगकांग में एक स्टूडेंट था, वो टिफिन लेके जाता था रोज स्कूल में, बड़ा हो गया, मेरे को बोला कि सर मैं जहाँ स्कूल में जाता हूँ तो सब मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को हंसते हैं कि इतना बड़ा हो गया फिर भी टिफिन लेके आता है, घर से लंच बॉक्स लेके आता है बच्चे की तरह। इधर कैंटीन है ना, कैंटीन में खा ले, इधर सब चिकन वगैरह सब मिलता ही, वेज तो मिलता नहीं है कैंटीन में, इसलिए ये बच्चा घर से लंच बॉक्स लेके जाता है। तो सब चिढ़ाते हैं कि बड़ा वेजिटेरियन वाला आया। फिर मैंने उसको समझाया कि वहाँ बोल देना, उसने बोल दिया कि you people don't know what you eat, even I know what I eat. You eat chicken and inside chicken there is shit also. वो कैंसर तो हुआ नहीं होगा मालूम नहीं, मगर ये तो था ही ना अंदर, ये तो पक्का मालूम है। और तुम लोग वही भी खाते हो, भले धोखे खाते हो मगर खाते तो वही है ना। दूसरे दिन से उसने मेरे को बोला सर मैं जाता हूँ सब बच्चे ऐसे नीचे देख लेते, कोई बोलता नहीं मेरे को अभी। जो मैं खाता हूँ तो मेरे को मालूम है। हाउ कैन यू ईट समबडीज आई? कोई आप किसी की टांग खाते हो, किसी की आंख खाते हो, किसी का ये कैसे खा सकते हो? एंड दूसरी तरह से बोलते हो कि वी लव एनिमल, इफ यू लव एनिमल हाउ कैन यू ईट एनिमल? समझाने का तरीका। तो ये 237 नंबर का क्वेश्चन हुआ, 238 नंबर का अपन कल लेने वाले हैं।